اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا فما كنا لنهتدی ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لوائے الحمد و مقام المحمود سیدنا و مولانا مولا صلی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر مولا حسین کا صدقہ دو قدم آگے بیٹھے بیٹھے تشریف لیں گے تو مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہے، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت جناب بادشاہ، بسم اللہ۔ صاحبان اکرام، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار، بہت دور سے چلا ہوں آپ کی نوکری کے لیے، دسکے سے بنیا والا سے یہاں، اور پورا اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی تھکن محسوس کر رہا ہوں، اور جملہ میں نے پہلا کہنا ہے اور آپ کی داد ہی ہے جو مجھے میرے جسم میں تھوڑا سا سکتہ لے کے آئی گی۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کا ماحول، آپ کا مزاج بنانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور آپ کی پوری دعا ممبر پر آئے گی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ یہیں سے میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے جا رہا ہوں کہ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ جا کے سنا، جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ پھر سنیے، جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جو کون سا بندہ ہے جو خیالوں میں گم رہے گا اور کون سا بندہ ہے جو میرے ساتھ پرواز کرے گا۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ پھر سنیے، جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں۔ کیا کہنے میرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو تیری جوانی سلامت، پاک کی بھی آپ ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ پھر سنیے، جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے جملہ کمپلیٹ کروں گا۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں۔ جتنے بندے بیٹھے اٹھ کے بولو، آپ کا حق ادا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے ہو میں کہہ دوں میں راضی ہوں۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور پرندہ بنا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور جنت بنا دے اسے بہلول کہتے ہیں، اور جو مٹی کو ہاتھوں میں لے اور آدم بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو تدری کے لیے لاٹری بھائی تک ہاتھ مجھے ہے علی۔ کیا کہنے جو مٹی کو سبحان اور پرندہ اسے عیسیٰ، اور جو مٹی کو ہاتھوں میں آدم بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر تھوڑا سا کل والی گفتگو یاد ہو تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے نبی کو بھیجا کن میں، کچھ خاص مومنین میں، انہی کے نفسوں میں سے، اور کچھ مومن میں نے آپ کو دکھائے تھے۔ ایک مومنہ میں نے آپ کو دکھائی تھی جناب فاطمہ بنت اسد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا مومن میں آپ کو دکھانے لگا، اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ لے آئے، جب تک نہیں لا سکتے پھر میرا بتایا ہوا مانو۔ عزیزان محترم، دوسرا مومن پوری تاریخ کے سینے کے اوپر ایک ہی جملہ نقش ہے، اور وہ نقش ہے میرے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں ابھی مادر شکم میں تھا، شکم مادر میں تھا، میں تب بھی اقرار نبوت کرتا تھا۔ گہرا جملہ کہنے لگا، میں تب بھی اقرار نبوت کرتا تھا۔ عزیزان محترم،
पूरी कायनात में मैं खड़े में मुंह देकर नहीं, स्पीकर पे मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई हमें दिखाए, कोई हमें बता ही दे कि कभी रसूल ने कहा हो ऐ अली मुझ पे ईमान ले आओ। वाह 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 वाह। कभी कहा हो खदीजतुल कुबरा से कि मुझ पे ईमान ले आओ। कभी कहा हो जनाब फातिमा बिन्ते असद से कि मुझ पे ईमान ले आओ। और खुदा के बंदे ईमान वो लाता है जो पहले काफिर हो। वाह 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 वाह। जियो जियो। जो पहले ही मोमन हो उसका ईमान चेक किया जाता। अजीजान मोहतरम, यही तो वजह है कि बड़े ही मुंह फाड़ के कह दिए जाए बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली लाए। बच्चों में सबसे पहले चलो ठीक है क्लोजर है, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली लाए। इसका मतलब है कि बड़े बड़े बूढ़ों से ये बच्चा अच्छा निकला। नहीं समझे, नहीं समझे। बच्चों में क्या कहना है, सबसे पहले इस्लाम अली ने किया। अजीजान मोहतरम, और वाक़या लिखा जाता है कि मेरे रसूल ने कहा कोई है जो मेरी मदद करे। सारे ऐसे बैठे हुए थे जिवें सिर दे उत्ते परिंदे वाए ने, थोड़ा जा भी हिलिया ते उड़ गए। सारे खामोश बैठे थे, बुत बन के बैठे थे। उस वक्त मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हूँ जो आपकी मदद करूँगा, मैं हूँ जो आपकी मदद करूँगा। उस वक्त रसूल ने कहा या अली अंता वली, या अली अंता वसी, या अली अंता खलीफती, या अली अंता खलीफती। अरे बकवास करता है आज का मुल्ला जो कहता है कि मोहम्मद किसी को बता के नहीं गए, मोहम्मद कायनात को बता के गए हैं। या अली अंता खलीफती, कोई गहरा गहरा नच्चू गहरा मेरा खलीफा नहीं, या अली तू मेरा खलीफा है। वाह वाह। या अली क्या कहें, या अली तू मेरा खलीफा। अजीजान मोहतरम, यही तो वजह है। दूसरा मोमिन मैंने आपको दिखा दिया, अब तीसरा मोमिन आपके सामने रखने लगा। एक तरफ से अली उठे, दूसरी तरफ से अबू तालिब उठा। वाह वाह जियो। दुख लीजिएगा बात का। दूसरी तरफ से अबू तालिब उठे, कहा या सैयदी या मौलाई हल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से आ चुका है, पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से आ चुका है। अभी ये कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई, अबू तालिब पहले तिलावत कर रहा है। वो तेनू ये भी नहीं पता चला कि बेइज्जत के वक्त मोमिन कौन था। यानी बाजारों में नारे लगाते फिरते हो सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ओए अबू तालिब तो तेरी निगाह में काफिर है। एक बात ही बता दो, नारा लिया कहां से? नहीं समझे, नहीं समझे। मौला ने हाथों को सलामत रखे, जो तरीके लिए ये नारा लिया कहां से? बात नहीं है, हमने एक नबी भेजा। भेजा समझते हैं? कौन कौन सा आता है? भेजा, भेजा, हमने रसूल भेजा। अब भेजा हो तो भेजा समझ आए। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने नबी भेजा उनके नफ्सों में से, मिन अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में से। कुछ मोमिन मैंने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब है कि अली का और मोहम्मद का नफ्स एक है। फरमान मौजूद है या अली अंता नफ्सी, नफ्सों का नफ्सी, लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। या अली तेरा और मेरा खून एक है, या अली तेरा और मेरा जिस्म एक है, या अली तेरी और मेरी रूह एक है, या अली तेरा और मेरा नफ्स एक है। इसका मतलब है इन सब का नफ्स मोहम्मद जैसा है, मोहम्मद से है। इसका मतलब है कि जिनका नफ्स मोहम्मद से है वो कह सकते हैं, उनको हक है कि वो ये कहें कि मोहम्मद हम जैसा है, हम मोहम्मद जैसे हैं। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अली को हक है वो ये कहे कि हम मोहम्मद जैसे हैं, मोहम्मद हम जैसा है। खदीजतुल कुबरा को हक है वो कहे कि हम मोहम्मद जैसे हैं, मोहम्मद हम जैसा है। जनाब फातिमा बिन्ते असद को ये हक है वो ये कहे मोहम्मद हम जैसा है, हम मोहम्मद जैसे हैं। अबू तालिब को हक है वो ये कह सके कि हम मोहम्मद जैसे हैं, मोहम्मद हम जैसा है। लेकिन खुदा की कसम, जब मैं अली की दहलीज पे पहुंचा तो ये कह रहे थे या मोहम्मद अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अब्दों में से एक अब्द हूँ। यानी मेरे जुमला जहन में आ गया, यानी मैं मोहम्मद का नौकर हूँ। यानी नौकर को सहारा जैसी बेटी थोड़ी दी जाती है। आपने खुद को ये क्यों कहा कि मैं मोहम्मद का नौकर हूँ? तो मैं कायनात को बता दूं, जब अली अली हो के मोहम्मद का यार नहीं, फिर कोई भी मोहम्मद का यार नहीं। क्या कहने, मौला इन हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक बोले हैदरी।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी बाबा। जियो जियो क्या बात। यानी अजीब कानून बन गए, कुछ फर्क नहीं। हालांकि अपनी किताबों में लिखा हुआ है, अपनी किताबों में नहीं, भाइयों की किताबों से बताने लगा हूं, अपनी किताबों में लिखा है, उनका वाकया है। लिखते हैं जी, जब नबी ने भाई भाई बनाए, जिनकी तबीयत एक थी, जिनकी जहनीत एक थी, जिनके मिजाज एक थे, उन सबको इकट्ठा किया, भाई बना दिया। यानी कहा अबू बकर उमर का भाई है क्योंकि अबू बकर उमर जैसा है, अब्दुर्रहमान उस्मान का भाई है, क्यों? क्योंकि अब्दुर्रहमान उस्मान जैसा है। अब अबू जर सलेमान का भाई है, क्यों? क्योंकि अबू जर सलेमान जैसा है। अब सुन्नी किताबों की बात कर रहा हूँ, जब सबको भाई भाई बना दिया, सबको भाई भाई बना दिया, तो लिखते हैं कि मौला अली एक दीवार के पास, एक कॉर्नर के पास बैठे रो रहे थे। मौला उसके पास गए, मौला से पूछा कि रोने की वजह क्या है? तो मौला अली कहते हैं तुमने सबको भाई भाई बना दिया, एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सुन्नी किताबों से पढ़ रहा हूँ, रसूल ने अली की पेशानी चूम के कहा, या अली इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना दिया। अकल पे हैरानगी है मौलवी की, जो कहता फिरता है कुछ फर्क नहीं है इन सारों में। मोहम्मद कहता है इनमें कोई तुझ जैसा नहीं, तू कहता कुछ फर्क नहीं। इसका मतलब है तेरा दीन और है, मोहम्मद का दीन और है। वाह वाह क्या कहने हाथों के मौला ने हाथों को सलामत रखे। सुबहान, क्या बात। जियो जियो आप जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप जी, क्या कहने तेरी जवानी इस्लाम, तेरा दीन और है। एक और बात ज़हन में आ गई, खुदा की कसम अभी ज़हन में आई, और मैं कंजूसी ना करूंगी कि आप कंजूसी नहीं करते। देखिए 1,24,000 अंबिया, फिर उनमें से 313 रसूल हैं, फिर उनमें से 5 उलुल अज़म हैं। बहुत गहरी बात, खुदा की कसम बहुत गहरी बात, सारी रात का विलायत अली का नशा देने जा रहा हूँ। 1,24,000 अंबिया हैं, फिर उन 1,24,000 अंबिया में से 313 बड़े रसूल हैं, जिनके बारे में कुरान में अल्लाह कहता है तिलका रसूलन फज़्ज़लनाहु बाज़म अला बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों से अफजल बनाया है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1,24,000 अंबिया हैं, फिर उन 1,24,000 अंबिया में से 313 बड़े रसूल हैं, फिर उन 313 बड़े रसूलों में से 5 उलुल अज़म हैं, फिर उन 5 उलुल अज़मों में से एक खातमुन नबिय्यीन है, एक खातमुन नबिय्यीन है। कहते हैं अल्लाह जाने शियों का मज़हब क्या है, काले कपड़े पहन के हाय हुसैन करते रहते हैं, अल्लाह जाने इनका अकीदा क्या है। क्या तुम्हारा भी यही अकीदा नहीं है कि 1,24,000 अंबिया हैं, फिर उनमें से 313 रसूल हैं, फिर उनमें से 5 उलुल अज़म हैं, फिर उन 5 उलुल अज़मों से एक खातमुन नबिय्यीन है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1,24,000 अंबिया की ये जुर्रत नहीं है वो ये कह सके हम 313 रसूलों जैसे, 313 रसूलों की ये हिम्मत नहीं है वो ये कह सके हम 5 उलुल अज़मों जैसे, और 5 उलुल अज़मों की ये जुर्रत नहीं है वो ये कह सके ऐ ज़हरा की बाबा हम आप जैसे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ 1.25 लाख नबी जिस जैसे न हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा हो उसे अली मुर्तज़ा। वाह वाह जियो जियो, क्या बात। वाह 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 वाह। मैं उनकी जूती खा अली मोहम्मद जैसा। बेशक बेशक। बात कहीं और ना निकल जाए, मैं रिवर्स गियर लगा दूं। हमने नबी भेजा कुछ खास मोमिनीन में, मोमिन मैंने आपके सामने रख दिए, क्योंकि देखिए मोमिनीन ये जमा का सीगा है। बाहर तस्निया, और बाहर होता है 1, तस्निया होता है 2, जमा होता है कम से कम 3 या इससे ज्यादा। तो मोमिनीन है, मोमिन नहीं, मोमिनैन नहीं, मोमिनीन है। इसका मतलब है कम से कम 3 या इससे ज्यादा मोमिन हैं, और वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पहला मोमिन मैंने अली बताया और उसका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी तरफ मौला अबू तालिब हैं, वो फरमाते हैं या सैयदी या मौलाई हल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से आ चुका है। अभी कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई थी, अबू तालिब ने पहले कहा, फौरन कुरान की आयत आ गई, बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से आ चुका है। किताब का नाम सुन लीजिएगा,
तहकीक हक़ विलायत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अल्लामा ज़हूर अख्तर खान रोकड़ी, किताब का सफ़ा नंबर है 50। उसके ऊपर वो लिखते हैं कि रसूल फरमाते हैं, आप बहुत गहरा जुमला है, खुदा की कसम ये जुमला वो है कि मेरे वाले साहब और मैं बैठे हुए थे, हमने 5-10 मिनट एक दूसरे को दाद दी है। ये जुमला सुन के हमने एक दूसरे को 10 मिनट दाद दी है, और आप अल्लाह जाने कितने मिनट देंगे। यानी रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अली की विलायत के ऐलान का हुक्म दे दिया है, अगर मैं अली की विलायत का ऐलान ना करूं अल्लाह मेरे अमाल हफ्त कर लेगा। बहुत गहरा जुमला, बहुत गहरा जुमला, अल्लाह मेरे अमाल हफ्त कर लेगा। यानी अल्लाह ने मुझे अली की विलायत का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है, अगर मैं अली की विलायत का ऐलान ना करूं अल्लाह मेरे अमाल हफ्त कर लेगा, और अगर कोई अली की विलायत के बगैर अमल करता है अल्लाह उसके अमाल हफ्त कर लेगा। यानी फरमान बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। जब रसूल के अमाल हफ्त हो सकते हैं, हमारे अमाल की औकात ही क्या है? यही तो वजह है क़यामत के दिन जब फरिश्ते कहेंगे पकाओ की गीता से अमाल खाएगो, यानी फरिश्ते कहेंगे अपने पास रखो, अमाल की बात नहीं कर रहा, अपनी बात करो, यानी मैं अमाल की बात नहीं कर रहा। विलायत अली कहाँ है? वाह 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 वाह, नहीं समझे? फरिश्ते कहेंगे हम अमाल की तो बात नहीं कर रहे। एक और जुमला कह दूं, इसी बात को रिलेट करने जा रहा हूं, मेरे नबी ने कहा या अली जिसका मैं मौला हूँ उसका तू, बात याद रहे, जिसका मैं मौला हूँ उसका तू मौला है। या अल्लाह तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, या अल्लाह तू उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखता है, या अल्लाह तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने, या अल्लाह तू उसे छोड़ दे, भला कहाँ? जहन्नम में। हाँ मोहम्मद बलंतर अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि अल्लाह उसे छोड़ देता है। ये बात इधर से कंटिन्यू करेंगे। एक बंदा था, वो कहता फिर यार मैं क्या करूं, हर जगह अली है, जहां देखूं अली है, ओहद में अली है, बदर में अली है, खैबर में अली है, खंदक में अली है, नहरवा में अली है, सफीन में अली है, पर्दे में अली है, मेराज में अली है, यानी जन्नत में अली है। जिथे वे लो अली 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 अली, मैं किथे जावां, जिधर देखा अली, जिधर देखा अली, मैं जावां कहां, मैं जाऊं कहां? उसके लिए मैं कहता हूं हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना है अली से तो जहन्नम में जाइए। क्या कहने, मौला इन हाथों को सलामत रखे। वाह वाह, हर किते अली है जहन्नम से। बेशक या अल्लाह तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़। अज़ीज़ान मतलब इसी बात को रिलेट करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह ना माने उसे कोई फर्क पड़ेगा? गुलफाम भाई, उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अंबिया का सजदा करना उसे बढ़ा नहीं सकता, नमरूदो फिरौन का सरकशी करना उसे घटा नहीं सकता, क्योंकि जो कभी बढ़ जाए कभी घट जाए वो अल्लाह नहीं होता। इसलिए तो मौला फरमाते हैं मैं तुझे सजदा इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई तेरी जन्नत का लालच है, आना कसीमन नारे वल जन्नत, ना मैं तुझे सजदा इसलिए करता हूँ कि मुझे कोई तेरी दोज़ख का डर है, बल्कि मैं तुझे सजदा इसलिए करता हूँ कि तू लायक सजदा है। वाज़ेह में, यानी जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं, जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते। बहुत गहरा जुमला है खुदा की कसम, इसलिए मैं रुक के कह रहा हूँ। जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं, जिसे अली सजदा करे उसे जली कहते हैं। यानी अल्लाह की ये सिफ़त है कि ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँग आती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँग आती है। हम बिस्तर मोहम्मद पे अली सितारों की तरफ देख के कह रहे थे, ऐ सितारों गवाह रहना, तुमने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा, अली ने तुम्हें तलुआ गुरूब होते हुए देखा है, अली ने तुम्हें तलुआ गुरूब होते हुए देखा है, तुमने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। जब इतना कह रहे थे फौरन अल्लाह की आवाज आई, अली सो जाओ ताकि मेरी तौहीद बच सके। वाह वाह, क्या कहने जो समझ चुके हैं। मौला इन हाथों को सवारी भाई तक है बड़ी, अली सो जा ताकि मेरी तौहीद बच। आखिरी जुमला है, मुसाहिब गिला पढ़ेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अजीजान मोहतरम, मैं बात कर रहा था, या अल्लाह तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ देता। और मैं इतना बता दूं, अली को छोड़ने वाला ना शिया होता है ना सुन्नी होता है, अली को छोड़ने वाला खारजी होता है। जंग नहरवा मौला ने खारजियों के खिलाफ लड़ी,
جن کا نعرہ تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں. بات تو ٹھیک ہے، مقصد باطل ہے. مثال دے دوں، ایک پتر تے ایک پیو. بیٹا اپنے باپ کو باپ نہ کہے، باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بیٹے کو ہی حرامی کہیں گے. بات تک پہنچی گا خدا کی قسم، بیٹے کو ہی حرامی کہیں گے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے اگر میری اطاعت کرو گے تو میرے بندے بن جاؤ گے، اگر میری نافرمانی کرو گے تو شیطان کے بندے بن جاؤ گے. اب کہنا تو میں نے اتنا ہی ہے، اب علی کو مان کر اللہ کی اطاعت کر کے رحمان کا بندہ بننا ہے تو بھی تیری مرضی